اس وقت جی ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں جہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے ان کی فیملی یہاں پر پہنچی ہے. میرے ساتھ اس وقت نورین خان نیازی صاحبہ موجود ہیں. میڈم بتائیے گا، کافی دنوں سے آپ یہاں پر دھرنا دے رہی ہیں، ملاقات نہیں کروائی جا رہی، آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ کیا کریں گی آپ؟ مسلسل ایسے بیٹھتی رہیں گی یا کیا کچھ ہوگا اس لیے؟ دیکھیں، ہم تو ہر منگل آتے ہیں کیونکہ ہمیں عدالت نے بھی اجازت دی ہوئی ہے اور جیل اتھارٹیز بھی ہمیں بلاتی ہیں. اب یہاں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ بھی ہمیں بتایا جاتا کہ ہمیں ملاقات ہونی ہے کہ نہیں، اور کسی ایک دن وہ کہیں گے جی ایک بہن کی ملاقات کرا دیں گے. تو اب پتہ یہ چلتا ہے کہ اب عدالتیں بے معنی ہو گئی ہیں. عدالت سے ہم اجازت لے کے آتے ہیں، ایس ایچ اوز کی بات لفٹ ہی نہیں کراتا. سوچے ایس ایچ او چیف جسٹس سپریم ہائی کورٹ کی بات نہیں سنتا تو کہاں بیچاری عدالتوں کا کیا حال ہو گیا؟ آپ دوبارہ عدالتوں میں بھی نہیں گئیں کہ اگر عدالتی آرڈرز کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کے بعد تحریک انصاف نے عدالت کا بھی رخ نہیں کیا کہ عدالت میں عدالتوں میں گئے ہیں، وہاں پہ کوئی آپ کو ملے گا ہی نہیں. وہ کہیں گے جی آج فلاں جگہ بزی ہیں، وہ بزی ہیں. بہت گئے ہیں ابھی تک، ہر ہفتے عدالتوں میں وہ ڈالی جاتی ہے پٹیشن. تو میڈم آپ کی پارٹی جو کچھ اس ملاقات کے لیے کر رہی ہے، یا ظاہر ہے ان کے اوپر سختیاں بھی بہت زیادہ ہیں، پوری پارٹی کے اوپر سہیل افریدی صاحب بھی ہیں یا تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی ہے، آپ مطمئن ہیں ان کی ابھی تک جتنی بھی کارکردگی ہے؟ جی بالکل اچھا کر رہے ہیں. پارٹی نے بڑی محنت بھی کی ہے اور پارٹی نے بڑی سختی بھی کاٹی ہے. دیکھو پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں چیف منسٹر آتا ہے KPK کا، ان کا رویہ ایس ایچ او کا دیکھا ان کے ساتھ. تو یہ کیا انہوں نے بنا دیا اس نظام کو، اور پنجاب پولیس کو بنا دیا ایک گنڈا پولیس ہے. وہ کسی کی نہیں سنتی کیونکہ اس کی سرپرستی جو کر رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ جی انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے. اب یہ اگر جب یہ بدلے گی حکومت ان کی تو پھر وہ پنجاب پولیس کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. لوگ ان کو سڑکوں پہ نہیں چھوڑیں گے جو یہ ظلم کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی ظاہر ہے پنجاب کے اندر حکومت ہے، آپ کے اوپر ایک دن یہاں پر واٹر کینن کا استعمال بھی ہوا رات گیا، جو کہ ظاہر ہے خواتین کے ساتھ کس صورت میں قابل قبول نہیں ہے. مریم صاحبہ کے لیے کوئی ہے پیغام آپ کا؟ کوئی پیغام نہیں. خاتون ہے، خاتونوں کے اتنی ظالم بڑے کم لوگ ہوتے ہیں. بڑا ظلم کرنے پہ ان کو شاید میرے خیال ہے وہ سمجھتی ہیں کہ وہ اس ملک میں حکمرانی انہی کی ہے اور وہ ان کا خیال ہے کہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ حکومت سے نکلے تھے تو کوئی بندہ بھی پیچھے نکلنے کے لیے نہیں تھا. یہ لوگ کوئی نہیں نکلے گا، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ظلم کرنے کے بعد ہوگا وہ بھی اللہ نے ان سے حساب لینا ہے. اور ہم آج بیٹھے ہیں کیونکہ عمران خان نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا. عمران خان نے کسی پولیس استعمال نہیں کری، کسی کو نہیں کرتے تھے. ان کو اپنی طاقت تھی کہ میں جو کام کر رہا ہوں یا میں نے لوگوں کے ساتھ، آج یہ سب لوگ عمران خان کی محبت میں آتے ہیں. یہ عمران خان کے کام ہے اور ان کی ایمانداری اور سچائی ہے. اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. جتنی محبت عمران خان سے لوگوں نے کی ہے پاکستان میں شاید ہی کسی کے ساتھ ہوئی ہوگی. جی ہم بیٹھے ہیں اور بیٹھیں گے. ابھی مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ شاید انہوں نے آج میری ملاقات کروانی ہے. آپ کو بھی کہا تھا کسی نے کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ایک ملاقات ہوگی، کہہ رہے تھے، سنا تھا میں نے کہ ایک بہن کی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں کی. تو آپ دیکھیں کہ اب ہم بیٹھے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ انہوں نے جو کیا تھا اس دفعہ کیا کرنا ہے، یہ نہیں پتا. نورین صاحبہ یہ بھی بتائیے گا، کہہ رہے تھے پچھلے دفعہ وہ آپ کو سیف ایگزٹ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ لوگ اٹھ جائیں، تو جس طرح ایز یوزول ہم آپ کو گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے ہیں، ہم آپ کو لے جاتے ہیں تو آپ کے کارکنان آٹومیٹکلی یہاں سے چلے جائیں گے. کیا آپ اس دفعہ کوئی سیف ایگزٹ کے موڈ میں ہیں؟ نہیں، سیف ایگزٹ تو نہیں. انہوں نے، ہم تو چپ کر کے جا رہے تھے، پیچھے سے انہوں نے پانی پھینکا رات کے 2 بجے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ پانی ہم عورتوں پہ پھینکا گیا ہو؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کو کیونکہ 2 مہینے انہوں نے رکھا اپنی سولیٹری کنفائنمنٹ میں، پھر ایک بہن کی ملاقات ہوئی، تو ابھی کیا پلان ہے؟ کیونکہ خان صاحب کو تو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. خان صاحب نے جو لائے عمل دیا ہوا ہے کہ اگر میری ملاقات رک جاتی ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ KP کو بند کر دیں، آپ کوئی بڑا قدم اٹھائیں، تو کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں اٹھائے جائیں؟ جو اس فیصلہ کرنے والے وہ کریں گے. ہم تو یہاں بیٹھنے آتے ہیں بس. آپ بیٹھنے آتے ہیں؟ ہم یہی کر سکتے ہیں، باقی پارٹی کرے گی جو ان کا فیصلہ. جو آپ کو تنقید کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ
एक मीडिया इवेंट क्रिएट करती हैं अलीमा खान साहबा यहाँ पे आके, अगर वो भी ना करें तो खान साहब को तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। आप क्या समझती हैं, आप क्या मीडिया इवेंट क्रिएट करने आती हैं या हकीकी तौर पे अपने भाई से मुलाकात का मकसद होता है? हम तो भाई से मिलने हैं, भाई की जद्दोजहद करें, भाई की आज़ादी के लिए। ये जालिम है, जुल्म करे उन पे, हम उसके लिए आते हैं, उनके लिए आते और इंशाअल्लाह हमारी ये ज़ाया नहीं होगी। इन्होंने, आपको पता है, हमारे ऊपर जो जुल्म किया है, पिछली दफ़ा आपने देखा था कि पानी फेंकना, कभी आपने सुने? हम वापस जा रहे थे, इन्होंने हमारे ऊपर जिस तरह रात के 2 बजे पानी फेंके सर्दी में, तो ये इससे बड़े और क्या जुल्म हो सकता है? तो ये बताइएगा, आज तो कारकुनान की ज़्यादा तादाद नहीं आई हुई? नहीं, आई हुई है, बहुत अभी पीछे रुके हुए हैं। जो दूसरी तरफ से जो आ रहे हैं, पिंडी की तरफ से, उनको तो आने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, तो ये हर रोज जब भी आपके साथ कोई वाकया होता है तो कारकुनान तो बढ़ जाते हैं? नहीं, बड़ा इन्होंने मदद की उस दिन, बेचारे सब जख्मी भी हुए हैं, और किसी की वो टांग भी शायद खट्टे की फ्रैक्चर, बड़ा इन्होंने हमारा शायद साथ खट्टक दिया। साहब की। हाँ। तो ये बताएं, वो जो लड़का जो पानी के सामने खड़ा हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? तो बचपन से इमरान खान की मोहब्बत में आता है, उन्होंने भी इजाज़त दी हुई है, और जेल अथॉरिटीज़ भी हमें बुलाती हैं। अब यहाँ जब हम आते हैं तो हमें ये नहीं होता कि भी हमें बताया जाता कि हमें मुलाकात होनी है कि नहीं, और किसी एक दिन वो कहेंगे जी एक बहन की मुलाकात करा देंगे। तो अब पता ये चलता है कि अब अदालतें बेमायनी हो गई है। अदालत से हम इजाज़त लेके आते हैं, SHO उसकी बात लिफ्ट ही नहीं कराता। सोचे SHO चीफ जस्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट की बात नहीं सुनता, तो कहाँ बेचारी अदालतों का क्या हाल हो गया? आप दोबारा अदालतों में भी नहीं गई कि अगर अदालती ऑर्डर्स के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ ने अदालत का भी रुख नहीं किया कि अदालत में अदालतों में गए हैं, वहाँ पे कोई आपको मिलेगा ही नहीं। वो कहेंगे जी आज फलां जगह बिजी है, वो बिजी है। बहुत गए हैं अभी तक, हर हफ्ते अदालतों में अब वो डाली जाती है पिटीशन। तो मैडम, आपकी पार्टी जो कुछ इस मुलाकात के लिए कर रही है, या जाहिर है उनके ऊपर सख्तियां भी बहुत ज़्यादा हैं पूरी पार्टी के ऊपर, सोहेल अफरीदी साहब भी हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी है, आप मुतमईन हैं उनकी अभी तक जितनी भी कारकर्दगी है? जी बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। पार्टी ने बड़ी मेहनत भी की है, और पार्टी ने बड़ी सख्ती भी काटी है। देखो पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, आप देखें चीफ मिनिस्टर आता है KPK का, उनका रवैया SHO का देखा उनके साथ, तो ये क्या इन्होंने बना दिया इस निज़ाम को, और पंजाब पुलिस को बना दिया एक गुंडा पुलिस है। वो किसी की नहीं सुनती, क्योंकि उसकी सरपरस्ती जो कर रहे हैं उनका ख्याल है कि जी इन्होंने हमेशा रहना है। अब ये अगर जब ये बदलेगी हुकूमत इनकी, तो फिर वो पंजाब पुलिस को सोचना चाहिए कि इनके साथ क्या होगा। लोग इनको सड़कों पे नहीं छोड़ेंगे जो ये जुल्म करते हैं। मरियम नवाज साहिबा की ज़ाहिर है पंजाब के अंदर हुकूमत है, आपके ऊपर एक दिन यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ रात गया, जो कि ज़ाहिर है ख़वातीन के साथ किस सूरत में काबिल कबूल नहीं है। मरियम साहिबा के लिए कोई है पैगाम आपका? कोई पैगाम नहीं, खातून है, खातूनों के इतनी जालिम बड़े कम लोग होते हैं। बड़ा जुल्म करने पे उनको शायद मेरे ख्याल है वो समझती हैं कि वो इस मुल्क में हुक्मरानी उन्हीं की है, और वो उनका ख्याल है कि हमेशा रहेंगे। देखिए उनके साथ, आपको पता है कि जब वो हुकूमत से निकले थे तो कोई बंदा भी पीछे निकलने के लिए नहीं था। ये लोग कोई नहीं निकलेगा, और अल्लाह देख रहे हैं जो इनके साथ जुल्म करने के बाद होगा, वो भी अल्लाह ने इनसे हिसाब लेना है। और हम आज बैठे हैं क्योंकि इमरान खान ने कभी किसी पे जुल्म नहीं किया था। इमरान खान ने किसी पुलिस इस्तेमाल नहीं करी, किसी को नहीं करते थे। उनको अपनी ताकत थी कि मैं जो काम कर रहा हूँ या मैंने लोगों के साथ, आज ये सब लोग इमरान खान की मोहब्बत में आते हैं। ये इमरान खान के काम है और उनकी ईमानदारी और सच्चाई है। अल्लाह लोगों के दिलों में डालता है। जितनी मोहब्बत इमरान खान से लोगों ने की है, पाकिस्तान में शायद ही किसी के साथ हुई होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नौरीन साहिबा, ये भी बताइएगा, कह रहे थे पिछले दफ़ा वो आपको सेफ एग्जिट देने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग उठ जाएं, तो जिस तरह एज यूजुअल हम आपको गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, हम आपको ले जाते हैं, तो आपके कारकुनान ऑटोमेटिकली यहाँ से चले जाएंगे। क्या आप इस दफ़ा कोई सेफ एग्जिट के मूड में हैं? नहीं, सेफ एग्जिट तो नहीं। उन्होंने, हम तो चुप करके जा रहे थे, पीछे से इन्होंने पानी फेंका रात के 2 बजे। कभी आपने सुना है कि पानी हम औरतों पे फेंका गया हो? अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब को क्योंकि 2 महीने उन्होंने रखा अपनी सोलिटरी कन्फाइनमेंट में, फिर एक बहन की मुलाकात हुई, तो अभी क्या प्लान है? क्योंकि खान साहब को तो मुलाकात नहीं करने दी जा रही। खान साहब ने जो लाएअमल दिया हुआ है कि अगर मेरी मुलाकात रुक जाती है तो आप लोग जो है वो KP को बंद कर दें, आप कोई बड़ा कदम उठाएं, तो क्या मसला है, क्यों नहीं उठाया जाए? जो इस फैसला करने वाले करेंगे, हम तो यहाँ बैठने आते हैं बस। आप बैठने आते हैं?
हम यही कर सकते हैं, बाकी पार्टी करेगी जो उनका फैसला। जो आपको तनकीद करने वाले वो कहते हैं कि आप जो है वो एक मीडिया इवेंट क्रिएट करती हैं, अलीमा खान साहबा यहाँ पे आके, अगर वो भी ना करें तो खान साहब को तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। आप क्या समझती हैं, आप क्या मीडिया इवेंट क्रिएट करने आती हैं या हकीकी तौर पे अपने भाई से मुलाकात का मकसद होता है? हम तो भाई से मिलने हैं, भाई की जद्दोजहद करें, भाई की आज़ादी के लिए, ये जालिम में जुल्म करे उन पे, हम उसके लिए आते हैं, उनके लिए आते और इंशाअल्लाह हमारी ये ज़ाया नहीं होगी। इन्होंने, आपको पता है, हमारे ऊपर जो जुल्म किया है, पिछली दफ़ा आपने देखा था कि पानी फेंकना, कभी आपने सुने? हम वापस जा रहे थे, इन्होंने हमारे ऊपर जिस तरह रात के 2 बजे पानी फेंके सर्दी में, तो ये इससे बड़े और क्या जुल्म हो सकता है? तो ये बताइएगा, आज तो कारकुनान की ज़्यादा तादाद नहीं आई हुई? नहीं, आई भी है, बहुत अभी पीछे रुके हुए हैं। जो दूसरी तरफ से जो आ रहे हैं, पिंडी की तरफ से, उनको तो आने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, तो ये हर रोज जब भी आपके साथ कोई वाकया होता है तो कारकुनान तो बढ़ जाते हैं? नहीं, बड़ा इन्होंने मदद की उस दिन, बेचारे सब जख्मी भी हुए हैं, और किसी की वो टांग भी शायद खट्टे की फ्रैक्चर हुई, बड़ा इन्होंने हमारा शायद साथ खट्टक दिया। साहब की। हाँ। तो ये बताएं, वो जो लड़का जो पानी के सामने खड़ा हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? तो बचपन से इमरान खान की मोहब्बत में आता है ना, तो उसकी मोहब्बत ही अपनी है, तो उससे उसी जज्बे से खड़ा था। उसी जज्बे से खड़ा था। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया है। अब वो राय न बन जाए, हमें होश के नाखून ले लेना चाहिए। चंद लोगों की मराद के लिए इस मुल्क को तबाह नहीं करना होगा, और खान साहब आएगा, और इंशाल्लाह जिस तरह उसने उम्मत मुसलमान के लीडर होते हुए दुनिया में ये बोला था कि हम जंगे नहीं चाहते, और इंशाल्लाह वो जंगे नहीं चाहता है। पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने इंडिया से अपना मुल्क आज़ाद किया है कानून के तहत, जंगे लड़कर नहीं। हम फिर ये जंग से हमारी जीत सकते हैं, हम सके वो राय न बन जाए, हमें होश के नाखून ले लेना चाहिए। चंद लोगों की मराद के लिए इस मुल्क को तबाह नहीं करना होगा, और खान साहब आएगा, और इंशाल्लाह जिस तरह उसने उम्मत मुसलमान के लीडर होते हुए दुनिया में ये बोला था कि हम जंगे नहीं चाहते, और इंशाल्लाह वो जंगे नहीं चाहता है। पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसने इंडिया से अपना मुल्क आज़ाद किया है कानून के तहत, जंगे लड़कर नहीं। हम फिर ये जंग से हमारी जीत सकते हैं, हम